I hope you all are fine. This is your online class of science for class 2. Today we will do book exercises. Take out your science book, all of you. Open page number 27. Those who have joined now, kindly open page number 27 on your textbook. Today we will do book exercise. Write down the date on page number 27. Today's date is 3/9/20 and day is Thursday. Also write the date on page number 28. All of you are ready? Should I start? Open your cameras, all of you. All of you open your cameras. अच्छा जी. Question 1 is choose the correct option. First one is a natural environment where an animal lives is called its dash. Option A is home, option B is park, option C is zoo, and option D is habitat. Now which one is the right answer? Raise your hand. Who will give me the answer? एनिमल जिस जगह पे रहता है, जो कि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, उस जगह का क्या नेम है? जू या हैबिटेट? शाबाश, रेज योर हैंड इफ़ यू नो द आंसर. अदरवाइज आई विल सेलेक्ट रेंडमली. मैं किसी से भी पूछ लूँगी. ओके जी. सो महमिल ज़ारा, अनम्यूट योर सेल्फ. Yes, Mehmal, which one is the right answer? Yes? No, beta, zoo is not the right answer. It's a habitat. All of you circle option D, habitat. Natural environment where an animal lives is called its habitat. Option D is the right answer. Encircle option D, all of you. Okay ji. Now second one is a panda feeds on dash. Option A grass, option B meat, option C bamboos, option D insects. Which is the right answer? Raise your hand. ऑप्शन सी bamboos या ऑप्शन डी insect, इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है? यस, अबू बकर सिद्दीक, unmute yourself. Bamboos. Excellent. Bamboos is the right answer. Option C. Very good. All of you encircle the option C, bamboos. Now turn the page.
Page number 28. Third one is animals that are about to finish on earth are called dash. Endangered. Option B extinct. Option C dead. Option D live. Which one is the right answer? वो animals जो कि इस दुनिया से ख़त्म होने वाले, अभी ख़त्म हुए नहीं हैं, जैसे कि पांडा. तो विच वन इज़ द राइट आंसर? इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट? इनमें से राइट आंसर कौन सा है? मोहम्मद शाहजेब. अनम्यूट योर सेल्फ मोहम्मद शाहजेब. हरिया बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ. अच्छा जी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, endangered. All of you circle option A, endangered. Animals that are about to finish are called endangered animals. And the last one, fish live in dash. Option A, park. Option B, forest. Option C, desert. या option D, water. This is so easy. Fish कहाँ रहती है? Where does a fish live? Excellent, Fasiha Ali. Yes, the right answer is water. Option D. All of you circle the option D. Water. Very good, Sayyid Moiz. I will repeat it once again. फर्स्ट वन में आता है ऑप्शन डी, सेकंड में आता है ऑप्शन सी, थर्ड में आता है ऑप्शन ए एंड फोर्थ में आता है ऑप्शन डी. आई होप यू ऑल हैव completed this. Now we will move towards question number 2. Fill in the blanks. ठीक है, fill it with me. We dash take care of our pets. शुड या शुड नॉट? हमें अपने पेट की केयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? व्हाट इज़ द राइट आंसर? शुड आएगा या शुड नॉट? मोहम्मद रामिस. अनम्यूट योर सेल्फ मोहम्मद रामिस. वालेकुम अस्सलाम. जी रामिस, इस ब्लैंक में क्या आएगा? वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट्स या वी शुड नॉट? क्या आएगा आंसर में? वी शुड. वेरी गुड. सो आप सब यहाँ पे राइट करेंगे, बल्कि राइट नहीं करना, आपने टिक लगाना है. ठीक है, शुड. शुड पे आप सब ने टिक लगा देना. वेरी गुड रामिस. नाउ सेकेंड वन इज birds should be provided with dash. bubble gum या seeds? birds को हमें क्या देना चाहिए? मोहम्मद रुहेल. अनम्यूट योर सेल्फ मोहम्मद रुहेल. हरिया बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ. यस जी रुहेल. Which one is the right answer? Birds should be provided with dash. Bubble gum या seed? हमें birds को क्या देना चाहिए? Excellent, seeds. Put a tick on a seed. Very good. Now third one is a natural place where an animal live is called its dash. हाउस या हैबिटेट? ये तो हमने अभी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में भी किया. कौन आंसर देगा? हाशिर सिद्दीकी. अनम्यूट योर सेल्फ हाशिर. और
OTT Hashir, which one is the right answer? House या habitat? House. No. Natural place where animal live. एनिमल के हाउस को हम क्या कहते हैं बेटा? हैबिटेट. वेरी गुड. द हाउस ऑफ एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट. ठीक है. नाउ फोर्थ वन. ह्यूमन हंट एनिमल्स फॉर देयर डैश. स्किन या ब्लड? मुबशिर, अनम्यूट योरसेल्फ. मुबशिर. यस मुबशिर. Which one is the right answer? Skin या blood? Humans animal का शिकार क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? बॉडी यानी कि उनकी स्किन मिल जाए. वेरी गुड. सो ऑल ऑफ यू पुट इट ऑन अ स्किन. Very good Mubashir. And the last one is wild animals can be dashed to us. Harmful या friendly? Wild means jungly animals. जैसे lion हो गया, इस तरह के animals. So what are they? क्या वो harmful होते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, या हमारे लिए हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं? यस शहबाज अली, अनम्यूट योरसेल्फ. जी बेटा, विच वन इज़ द राइट आंसर? हार्मफुल या फ्रेंडली? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर. वेरी गुड. हार्मफुल. जंगली जानवर क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं. सो पुट अ टिक ऑन हार्मफुल. OTG, very good. We will repeat once again. फर्स्ट वन में आता है should, सेकंड में आता है seeds, थर्ड में आता है habitat, फोर्थ में आता है skin and फिफ्थ वन में आता है harmful. I hope you all have completed this word. अच्छा, now this page is not included. ठीक है, आप यहाँ पे क्रॉस लगा दो. यहाँ पे इस पे पिक्चर्स लगानी है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. पेज नंबर 29 इज़ नॉट इंक्लूडेड. उस पे आप ऐसे छोटा सा क्रॉस लगा दो. आई होप यू ऑल हैव डन दिस. जितना कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ से देख कर कंप्लीट कर लें. ठीक है बेटा. Those who are done, raise your hand. Very good, Mehmet Zara. Very good, Fasiha Ali. Very good, Hashir.
वेरी गुड अबू बकर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वर्क. मेरी दफ़ा आपको पुराना काम भी टेली करवा दूँ. जो बच्चे हमारे साथ स्टार्ट से नहीं थे वो देख लें कि हमने यूनिट 1 की बुट एक्सरसाइजेस की थी. जिसका इनकम्प्लीट है वो कर ले कंप्लीट. ठीक है. सी दिस वन. दिस इज़ ऑफ लेसन 2. यूनिट 1 की हमने बुट एक्सरसाइज की थी. ठीक है. ऑन पेज नंबर 9 आप चेक करें. आप सब ने की हुई है. ऑल ऑफ यू टेली द बुक विथ मी. पेज 9 इज़ डन. मुबशिर, why your page 9 is not done? Beta, you have to complete page number 9. Then हमने पेज 10 किया था. दिस एक्सरसाइज ये भी आप सब की होनी चाहिए लाजमी. आफ्टर दिस वेरी गुड साहर. We have done the exercises of unit 2. This page number 14. All of you check page number 14. आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है उस पर. देन पेज नंबर 15 उसमें 2 एक्सरसाइजेस थी और आपने इस डायग्राम में कलर करना था. लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में आप सबने कलर्स करने थे. चेक इफ़ इट इज़ कंप्लीट. अगर कंप्लीट नहीं है तो आज आपने कंप्लीट करना है. ठीक है. क्योंकि 5 सितंबर को आप ये सब चीज़ें भिजवाएंगे स्कूल फॉर चेकिंग. देन दिस वन exercise on page number 21. Check it is done or not. Page number 21. This exercise is of unit 3. Then page 22. इसमें आपके पास 2 एक्सरसाइजेस थी और जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपने कलर करना था. इन दीज 3 एनिमल्स काउ, बैट एंड बटरफ्लाई पे आपने कलर्स करने थे. चेक इफ़ इट इज़ कंप्लीट और नॉट. अगर इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कर लें. ठीक है. एंड देन वी हैव डन टुडेज़ एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4. मुबशिर, व्हाई योर वर्क इज़ इनकम्प्लीट? आप ग्रुप से पिक्चर्स लें और सारा काम कंप्लीट करें. ओके. एंड देन दीज आर टुडेज़ एक्सरसाइज. वो एक्सरसाइज जो हमने आज की हैं वो भी इंशाल्लाह ताला आपकी कंप्लीट होंगी. जिनकी इनकम्प्लीट है प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क. ओके जी. द टाइम फॉर दिस क्लास इज़ ओवर. ओके जी. अल्लाह हाफिज़.